ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Alright. So we are on page number 251 for those who have the books. And the last thing that we read yesterday was about karma, the capacity to sacrifice the content of your being for creating something new is called as karma. And karma is essentially a sacrifice of your being. Creation is the sacrifice, it is a movement of creative energy which results in creation. It is a sacrifice of the total being. Okay. So, whatever we do, we have to make it, we have to give any karma that we do, we have to give our whole to it. Now, I'm reading ahead from there at that point. I wonder if you remember that this whole universal life was called a cycle of constant yajna, sacrifice. The being, the Brahman, Purushottam, is giving out all the time the contents of its being. The eternal life is a yajna. कहने की बात ये है, just one second, excuse me, dear friend. All right, sorry about that. Okay, so here she says, I wonder if you remember that this whole universal life was called a cycle of constant yajna, sacrifice. जिंदगी ही यज्ञ है। ये पूरा जो जीवन काल है, ये जीवन चक्र है, ये एक यज्ञ की तरह ही तो चलते रहता है। The being, the Brahman, Purushottam, is giving out all the time the contents of his being. ये जो भी ब्रह्मांड है, जो भी ये शक्ति है, ये कंटिन्यूसली खुद को देती ही रहती है, right? The eternal life is a yajna. A variety of yajnas are going on in the universe. The burning of the sun, giving out heat and light, warmth, the healing energies, the creative energies in the universe, all are yajnas, sacrifices. Soma, the moon, gives out creative energies, the nectar of energies. Soma is Amritam, nectar. The sun creates and the moon pours the nectar for the subsistence of that which has been created. Such a beautiful statement over here. क्या कह रही है यहाँ पे? पूरी जीवन जो है ना, ये जो अनंत जीवन है, ये जो अमर जीवन है, यही एक यज्ञ है। और यज्ञ तो ब्रह्मांड में चलते ही रहते हैं, युगों युगों तक चलते रहते हैं, कब हमेशा के लिए चलते हैं। जैसे सूर्य का तपना, उसकी उससे मिलने वाली हमें ऊर्जा है, उससे मिलने वाली हीट, लाइट, वार्मथ है, और जो भी उससे हम ठीक होते हैं, हीलिंग एनर्जीज। आप जानते हो ना, बहुत सारी फिजिकल इलनेसेस तो धूप में बैठ के ठीक हो सकती है, राइट फ्रॉम एक्जिमा टू विटामिन डी डेफिशिएंसी टू ड्राइंग ऑफ वुंड्स, anything. There are so many things that can work out if you sit in the sun. The creative energies in the universe, all yadnas, ये सारे यज्ञ है। और सोम, सोम यानी चंद्र, चंद्र की भी ऊर्जाएं जो है, उसको तो ऊर्जाओं का अमृत कहा गया है। सोम का मतलब ही होता है अमृत, नेक्टर, राइट? तो ये सूर्य बनाता है और चंद्र जो है वो अमृत जिंदगी में ढालता है। द सन क्रिएट्स एंड द मून pours the amrit in the creation. A cosmic yajna is going on in the whole universe, in our life, at the perishable level, at the level of that which is born and which is going to die, the sacrificial outpouring of the being, whether you give birth to a child, whether you pour out your being through speech, whether you pour out your being through love and sharing, it is all a sacrifice, a yajna. Okay.
सैक्रिफाइस शब्द मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। यज्ञ का मतलब बहुत अलग होता है, सैक्रिफाइस का थोड़ा अलग नेगेटिव मतलब अर्थ निकालते हैं लोग सैक्रिफाइस का, इसलिए। बट इट्स ओके, वी विल गो विथ इट एज शी इज सेइंग, इट इज ऑल अ सैक्रिफाइस, अ यज्ञ। Human life itself is divinity, and to live is a man is to manifest that divinity, the purity of that divinity in relationships. यहाँ पे कह रही है कि ये जो ब्रह्मांड का यज्ञ जो है, ये तो पूरे ब्रह्मांड में होते रहता है, लेकिन हमारी जिंदगी में भी हम बहुत सी चीजें हैं जो पूर्णत्व से करते हैं, जिसको यज्ञ समझ के हम करते हैं। जैसे कि प्रेम करना, किसी का ख्याल रखना, जैसे कि जन्म देना बच्चे को, है ना, आधा अधूरी ये चीजें जो है, ये आधी अधूरी नहीं होती, ये पूर्णत्व से हम करते हैं। हमारा जीवन जो है, ये एक दैवी जीवन है, ये एक दैवी शक्ति है, एक देव का अस्तित्व है। और ये जीवन जो है, ये जो देवत्व है, हमारे लाइफ का देवत्व, ये कहाँ पे दिखने को मिलेगा, या हम कहाँ दिखा सकते हैं? संबंधों में, रिलेशनशिप्स में, राइट? सो वी कैन एक्सप्रेस अवर डिविनिटी इन द रिलेशनशिप्स। तो जो भी संबंध हम बांधेंगे, उसमें हमारा लव एंड केयर एंड हमारी बातें जो हम वाचा जिसको कहते हैं, इसमें भी देव तत्व है, हमारे प्रेम में भी देव तत्व है। हमारा जीवन हम एक यज्ञ बना सकते हैं, बिल्कुल उसकी तरह, ब्रह्मांड की तरह, जो तो कंटिन्यूस यत्न करते रहता है। सूर्य अपनी धूप देकर इन रिटर्न कुछ चाहता है? बिल्कुल नहीं। चंद्र, तारे, इनको कुछ चाहिए हमारे से? ग्रह अपनी भ्रमंती करते रहते हैं, क्या वो हमसे कुछ चाहते हैं? कोई हमसे कुछ नहीं चाहता। तो सूर्य क्या कर रहा है? सूर्य अपना स्वभाव जो है, बस उसी को एक्सप्रेस करते जा रहा है। वो जो है, वो खुद को ढालते जा रहा है, खुद को दिखाते जा रहा है, जो भी वो खुद है, वो दर्शनीय करते जा रहा है, राइट? सूर्य का स्वभाव है, सूर्य की आत्मा है ऊर्जा, द सन एनर्जी, द लाइफ फोर्स, एंड ही कीप्स ऑन pouring that energy. We can do the same because we also have that energy. हमारे में भी आत्मा है, तो वह हमारी बातों में, हमारे करने में, हमारे संबंध जोड़ने में, अगर आत्मिक से, आत्मा के लेवल से, ईगो लेवल नहीं, नाम वगैरह वगैरह, स्वार्थ नहीं, कुछ नहीं, बस मैं ऐसी हूं तो मैं ऐसी दिख रही हूँ। अगर जो हूं वो हम दिखा सके, so that will be the yajna at a physical level, at a human level. Note the exceptional brilliance of Sri Krishna when he associates action or karma with the contents of the being of Atma. हाँ, कितने क्लेवर है! वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स टू हैव वॉक दिस अर्थ इज कृष्ण। एंड यहाँ पे कृष्ण ने कितनी सहजता से, कितनी आसानी से उन्होंने कर्म को आत्मा के साथ जोड़ दिया, और ये कह दिया, तुम्हारा तुम्हारे आत्मा में जो जो गुण है, वही गुण तुम्हारे कर्म में दिखने चाहिए, है ना? तो कर्म और आत्मा को बड़े स्मार्टली जोड़ दिया, एंड द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ शक्ति और प्रकृति, राइट? आई में से आई हैव गिवन बर्थ टू अ चाइल्ड। मैं कह सकती हूँ कि भाई मैंने एक बच्चे को जन्म दिया, कोई भी मतलब औरत, कि मैंने एक बच्चे को जन्म दिया। लेकिन गीता कहती है नो, द गीता सेज नो, the prakriti, the moola prakriti, which has the executive power, which resides in you, we are only given an opportunity to that executive power of cosmic life to manifest itself. मैंने कोई बच्चे को, मतलब मैं तो साधन हूँ, वो जो मूल प्रकृति है, वो जो शक्ति है, जो खुद को दिखाना चाहती है, मेरे माध्यम से वो क्रिएशन बनाती जाती है। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैं आई एम जस्ट द कार, इन विच द ओनर इज सिटिंग एंड गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट?
So you are just a vehicle. We are just a vehicle. By calling karma a sacrificial movement of creative energy, the Gita nips the bud of all attachment, all psychological involvement. Enjoyment, yes. Involvement, none. Right? जब कर्म को ही यज्ञ बनाओ, ये कहते हुए अगर कर्म यज्ञ है तो तुम उलझ कैसे सकते हो? तुम राग हमें कैसे आ सकते हो? अटैचमेंट में कैसे आ सकते हो? कर्म जब यज्ञ कर समझ के जब कोई चीज करते हैं तो रिटर्न तो कोई एक्सपेक्टेशन है ही नहीं। पता नहीं, इट वेंट रीस्टार्ट पे चला गया अपने आप। ओके, राइट। आई बात समझ में यहाँ पे, that what she is saying, what is being called over here, कर्म अगर यज्ञ है तो किससे अटैचमेंट है? और कर्म अगर यज्ञ है तो सोचना क्या है? अगर कर्म यज्ञ समझ के हम करते हैं तो चित्त वृत्ति निरोध ऑटोमेटिक है। नो अटैचमेंट, नो इन्वॉल्वमेंट, हाँ, नथिंग, नो साइकोलॉजिकल मूवमेंट। हाँ, जो कर रहे हैं उसका मजा हम जरूर ले सकते हैं, लेकिन उसमें उलझना बिल्कुल नहीं। You can enjoy the journey, you can enjoy the action, but you are not going to get involved in it. और यत्न समझ के कर रहे हैं तो फल पे हमारी नजर है ही नहीं कि फायदा होगा या नुकसान, सही होगा या गलत, अच्छा होगा या बुरा, ये सोचना ही नहीं है। जो होगा होगा। मैं कर्ता कर्विता हूं ही नहीं। जब मैं कर्म, क्या मैं एक माध्यम हूं? तो फिर रिजल्ट से मुझे क्या लेना देना? ये यज्ञ समझ के जब हम कुछ करते हैं, तब जब हम हमारी फल पे कोई नजर नहीं है कि अच्छा बुरा, जो भी कुछ होने वाला है, फायदा नुकसान, तो सोचना क्या है? और सोचोगे नहीं, यानी वृत्तियों का क्या हो गया? निरोध हो गया। तो चित्त वृत्ति निरोध। आदि दैव, आदि भूत, these two words are used in this chapter. इस अध्याय में आदि दैव और आदि भूत दो शब्द का उपयोग किया गया है। आदि भूत तो हमने देखा। आदि दैव, द डिवाइन दैट हैज मेड इट्स अबोर्ड इन योर बॉडी, द डिवाइन दैट इज एग्जिस्टिंग यू इन ऑपरेटिंग इन यू। आदि दैवी क्या है? कौन सा देव है जो मेरे अंदर है? मेरी आत्मा जो है। तो ये जो अधिदैव है, जिसने मेरे शरीर को, ये देव तत्व जिसने मेरे शरीर को घर बनाया है, और मेरे शरीर के माध्यम से, मेरे मन के माध्यम से, मेरी बुद्धि के माध्यम से जो भी करना है वो करते रहता है। राइट? सो आधिभूत, द पेरिशेबल फॉर्म थ्रू विच इट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ। तो आधिदैव जो है ना, ये आधिभूत के माध्यम से खुद को दर्शाता है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव आई फाइंड ओवर हियर, दैट आधिभूत को माध्यम बनाता है और आधिदैव जो है ये खुद को दृश्य बनाता है या खुद को दिखाता है। Let us go back to the point of how one retains the awareness of that absolute principle of life, the unchanging eternity, the Brahman, the supreme reality, while living in the perishable, utilizing all the energies contained in the perishable manifestation, going through pleasure and pain of the moment. That is the question which the Gita is dealing with. अभी हमने कल काफी बातें की कि हमने उलझना नहीं है, हमने भावनिक प्रतिक्रिया देनी नहीं है, फिर भी भावनाएं को कैसे हम नकारे, ये सवाल आई थिंक चारू जी ने पूछा। राइट? कि ये भावनाओं को कैसे हैंडल करें? अगर कोई चला जाता है, दुख होता है, रोना आता है, हम उनको मिस करते हैं, हम ये जो भी भावनाएं हमें महसूस होती है, इसका क्या करें? पूरे गीता का यही सवाल है। नजर रखनी है अनंत पर और जीना है सीमित में। You know, we have to keep our eyes on the eternal, the never ending Brahmanda universe,
and we have to live in this limited body, in this limited world, in this world of time and space, past, present and future. We have to live in this world of manyness. We have to go through relationships. संबंध बांधने हैं, संबंध को निभाने हैं, ये सब कुछ यहाँ पे करना है, काल स्थल में सीमित रहना है। लेकिन गीता कह रही है कि ध्यान तो ब्रह्मांड पे रखो, ध्यान तो परब्रह्म परमात्मा पे रखो, ध्यान ब्रह्म में रखो। ये करे कैसे? ऑलरेडी 2-4 बार ये सवाल पूछा गया है, ऑलरेडी अलग अलग अध्याय में इसके जवाब दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी ये इसका जवाब हम अब भी खोज रहे हैं, अब भी वी आर नॉट कन्विंस्ड। सो लेट अस गो बैक टू दैट क्वेश्चन, उसी सवाल को हम देखते हैं। हाँ, लेट अस डू दैट, राइट? सो शी सेज ओवर हियर एंड द डिस्कोर्सिंग। तो जब फिर से एक बार ये सवाल यहाँ पूछा जाता है कि सीमितता में रहते हुए अनंत की का ख्याल हम कैसे रखें? हाउ डू आई लिव इन दिस लिमिटेड शॉर्ट टर्म पेरिशेबल वर्ल्ड while keeping my attention, keeping my energies with the cosmic energy, which is eternal, which is never changing. I am in the ever changing world. I have to keep my eyes on my attention on the never changing. How do I do that? कैसे करें? कल आई थिंक निकी ने बाद में शेयर किया जो स्टोरी उन्होंने शेयर की, और उसी बात पे मैंने अपना खुद का अनुभव भी बताया कि कैसे ये हो पाता है, कि कैसे ये कर सकते हैं। उसी बात को यहाँ पे अब बहुत सुंदर तरह से समझाते हैं। गीता जवाब देती है, डिस्कोर्स सेज बाय डूइंग अभ्यास। उसका जवाब है अभ्यास करो। बाय डूइंग अभ्यास इट इज पॉसिबल टू dwell in the perishable, enjoy the movement of the energies contained in the perishable material existence, interact with the help of your mental existence, and yet not become a prisoner of it, not get stuck to it. हाँ, जो मैं अपना ही कल का ही उदाहरण लूंगी। अब मृत्यु तो मैंने करीबी से कभी देखा नहीं था, जब तक कि मेरे बड़े भाई और बाद में पिता, बस 1 साल के अंदर पिताजी भी गुजर गए, देखा नहीं था। लेकिन बरसों से ये जो अभ्यास हो रहा है कि किसी भी चीज में उलझना नहीं है, प्रेम करना है, अनकंडीशनल लव, ख्याल रखना है, अनकंडीशनल ख्याल, हेल्प देनी है, अनकंडीशनल हेल्प, लेना है अनकंडीशनली लेना है, देना है अनकंडीशनली देना है, जो भी करना है अनकंडीशनली करना है। इसका जो बरसों से ये जो अभ्यास चल रहा है, यही अभ्यास तब मेरे काम में आया जब हम इसको ट्रेजेडी कहेंगे। लेकिन अगर मैं सोचूं तो मैं जैसे मैंने कल शॉर्ट में लिख के भेजा, लेकिन अगर मैं सोचूं कि मेरे पिताजी का साथ मुझे लाइक वॉट एवर 58-59 ईयर्स तक तो मिला, राइट? 50 साल, चलो राउंड ऑफ पकड़ के चलो, पिताजी का साथ मुझे 50 साल मिला। वो 50 साल को याद करके खुशी मनाऊं, या वो शरीर छोड़कर चले गए इसका दुख मनाऊं? बस यही मेरे पास चॉइस है, एंड द चॉइस इज वेरी क्लियर। जिंदगी में दुख के लिए कोई जगह नहीं है। द चॉइस इज वेरी वेरी क्लियर। यू एंजॉय हिज लाइफ, you celebrate his life. I enjoy my life, I celebrate my life, I celebrate his life, I celebrate my life. I enjoyed his life, I'm enjoying my life. Why should I bring misery and suffering into it? इसका मतलब क्या मेरे पास भावनाएं नहीं है? बिल्कुल है। ये उनकी याद में अगर मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है तो ये भावना नहीं है, लेकिन ये मेरा चॉइस है। अगर मैं उलझी, अगर मैं अटैचमेंट में रही, तो मैं दुखी हो जाऊंगी, तो मैं रोऊंगी, क्यों छोड़कर चले गए, नहीं कुछ और रुक जाते, अरे मैं ये हो गया वो हो गए, कितने अच्छे थे, कितने अच्छे थे बोलकर रो रहे। हाउ डज दैट वर्क? टू मी इट डजंट मेक सेंस। एनीवे, कमिंग बैक, मेरा कहने का, ये उदाहरण देने का, ये एग्जाम्पल देने का मतलब है, अभ्यास इज व्हाट कम्स
which will help us to detach. Abhyasa will help us to not get entangled. Abhyasa will release us from bondage. चाहे व्यक्ति जीवित हो या चाहे व्यक्ति छोड़कर चला गया हो। देखो, एक्चुअली देखा जाए सबसे ज्यादा जिंदगी में हम किसकी याद निकालते हैं? अगर सोचा जाए, सबसे ज्यादा किसकी याद निकालते हैं हम? उस व्यक्ति की जिसने हमको तकलीफ दी, जिसने हमको दुख दिया, सबसे ज्यादा उसकी याद निकालते हैं। कैसे किया मेरे साथ, कैसे किया मेरे साथ। 5 साल बाद, 10 साल बाद, 50 साल बाद उसी बात को याद करते हैं कि उसने मेरे साथ कैसे किया। राइट? सो वेयर इज अवर एनर्जी, वेयर इज अवर अटेंशन? राइट? इट इज कंप्लीटली विथ नेगेटिविटी। तो अभ्यास करना पड़ता है, नेगेटिविटी से ध्यान हटा के पॉजिटिविटी के पास लाना पड़ता है, दुख से ध्यान निकाल के सुख की तरफ लाना पड़ता है। सही गलत के झगड़े न करते हुए जो है वो उसका वैसे ही स्वीकार करना, इस पर ध्यान लाना पड़ता है। वी हैव टू ब्रिंग अवर एनर्जीज, वी हैव टू ब्रिंग अवर अटेंशन फ्रॉम ऑल दीज कॉन्फ्लिक्ट्स and bring it into joyfulness, bring it into peacefulness. आनंद हम परमानंद बोलते हैं। क्या लगता है आपको परमानंद यानी कैसा होगा? जो व्यक्ति परमानंद में है वो गाना गाते, देवानंद की तरह डुलते या शाहरुख खान की तरह कूदते ऐसे घूमता है क्या? जो परमानंद में है व्यक्ति वो बिल्कुल नहीं। कैसे होता है? तो आनंद जब हम कहते हैं तो हंसना, खिलखिलाना नहीं। आनंद जब हम कहते हैं तो शांत चित्त, स्थिर चित्त, कहीं भी वृत्तियां, मूवमेंट नहीं, स्थिर, स्टेडी। दैट इज द स्टेट ऑफ अ पर्सन हु इज इन ब्लिस। दैट पर्सन हैज अ वेरी, आपने बुद्धा की मूर्तियां देखी होगी, बुद्धा के चेहरे पे मेडिटेशन में बैठे हैं या आंखें आधी बंद है उनकी, उनके चेहरे की मुस्कुराहट आपने देखी है? हाँ, आपने कृष्ण की मूर्तियां देखी है और कृष्ण है नहीं कर रहे, उनकी मुस्कुराहट देखी है? आपने जीसस क्राइस्ट की मूर्तियां देखी है? यहाँ पे हार्ट और उनका थोड़ा टिल्टेड ऐसा, वो हमेशा मेरे साथ वो इमेज उनकी रहती है, और देयर इज अ स्लाइट smile on their faces. These are they represent the cosmic energy, they represent the cosmic consciousness, the universal consciousness. They are the Parabrahma Paramatma. They are in Paramananda with a slight smile on their face and such a calmness in their energies. Their aura is completely calm, right? So how does it happen? सब बात की एक बात, अभ्यास। इस बात को फिर से चिंतन मनन करना, इस बात को हर सिचुएशन में प्रैक्टिस करना। राइट? या इज इट मेकिंग सेंस? शैलजा, I think you wrote something on this similar lines a few days ago, where you said that it's been quite a few years. By quite a few years, you practiced and you did abhyasa. You kept. What is abhyasa? अब अभ्यास पे काफी सारे आगे विमला जी बात करती है, so let us just move on. All right? कहने का मतलब ये है कि by doing abhyasa, it is possible to dwell in the perishable, enjoy the movement of the energy. सारी ऊर्जाओं का मजा हम ले सकते हैं। ये जो ऊर्जाओं की गतिविधियां है, हमारी आंखों से सुंदर चीजों को देखना, कानों से सुनना, स्पर्श सुंदर सुंदर चीजें, सब कुछ हम, हमारी विचार शक्ति हमने सुंदर चीजों के लिए यूज करना, इच्छा शक्ति हमारी जो भी मन करे उसको तृप्त करने के लिए यूज करना, ये सारी शक्तियों का हम आनंद ले सकते हैं इस सीमित शरीर में रहते हुए भी। Interact with the help of your mental existence and yet not become a prisoner of it, not get stuck into it. सब कुछ करेंगे, इच्छा पूर्ति भी करेंगे, जिंदगी भी जिएंगे, हर एक वस्तु व्यक्ति विषय के साथ
संबंध भी जोड़ेंगे लेकिन उलझेंगे नहीं, लेकिन बंधन में नहीं, लेकिन वहां पर हम अटकेंगे नहीं। ऑलराइट, सो लेट अस लुक एट द वर्ड अभ्यास। अभ्यास के ऊपर काफी अच्छी बातें यहाँ बताई है। अभ्यास इज नॉट रिपीटेशन। 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8. No, it's not repetition where you keep on repeating your tables, right? So abhyasa is not repetition. It is redoing but not repeating. आज सुचित्रा नहीं है, ये उसका फेवरेट सेंटेंस है, that it is redoing and not repeating. वही काम हम रोज करेंगे, शायद बातें भी वही करेंगे, लेकिन उसमें कोई ना कोई नया फ्लेवर होगा। There will be more and more awareness. There will be more attention into that same thing that you have been doing for years together and you are going to keep doing till the end of your life. Same thing. Every day we are meditating. हाँ, कितने सालों से कर रहे हैं? आई थिंक 16 साल हो गए हम लोग मेडिटेशन कर रहे हैं। हाँ, एटलीस्ट मेरी जर्नी को तो उतने साल हो गए। लेकिन वो मेडिटेशन हर बार, रोज, कभी कभी दिन में 2 बार, कभी कभी कुछ घंटों तक भी हम करते हैं। अभी जैसे कोई रिट्रीट में या कोई कोर्स में चले गए तो वहां तो 4 5 घंटे का या उससे भी ज्यादा मेडिटेशन हमारा होता है। विपश्यना में चले गए तो शायद 8 9 घंटे आप मेडिटेशन करोगे। क्या वो रिपीटेशन है? कोई भी मुझे बताए, इतने सारे मेडिटेटर्स यहाँ पे बैठे हैं, हाँ, क्या कभी तुम्हारा मेडिटेशन रिपीट हुआ है? नो, वी आर रीडूइंग इट। हर मेडिटेशन अपने आप में, वही हमारा बॉडी पोस्चर है, वही आंखें बंद है, वही थर्ड आई पे फोकस है, वही हमारा ब्रेथ कंप्लीटली एज गुड एज स्टॉप्ड है, हाँ, ना के बराबर। ऑल दैट इज देयर एंड येट एवरी डे इट्स अ न्यू मेडिटेशन। अगर ये हो सकता है तो हम जो भी कर्म सुबह उठ के ब्रश करने से लेके, इस शरीर को नहलाने से लेके, कपड़े पहनाने से लेके, अन्न वस्त्र जो भी है सब सब देने देने से लेके हर चीज में, क्या हम रीडू नहीं कर सकते? है ना, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या फर्क होगा? वही ब्रश करना है, फर्क क्या होगा? हमारा ध्यान उस पर होगा। We will be paying more attention. There will be more mental energy into what we are doing. There will be more focus. Our energies will not be scattered. हाथ ब्रश कर रहा है, दिमाग तो दौड़ रहा है कहीं कहीं, दूसरा हाथ दूसरा कुछ काम कर रहा है, एक हाथ से ब्रश, कितनी चीजें, हमारी एनर्जीज कितनी स्कैटर्ड होती है, right? Here and there we can gather up our energies and we can do with whatever we are doing, we can do with complete focus. So it is redoing and not repeating. What is the difference between repetition and redoing? When you do something for learning, when you are learning, there is no repetition. कितना सुंदर सवाल और उससे भी सुंदर जवाब। रिपीटेशन और रीडूइंग में क्या फर्क है? फिर से एक बार करने में, या तो रिपीटेशन ना, अभी आई डोंट नो द हिंदी वर्ड्स फॉर इट, बट रिपीटिंग एंड रीडूइंग के बीच में क्या फर्क है? तो जब कुछ सीखने के लिए, जब कुछ समझने के लिए तुम करते हो तो उसे रीडू बोलते हैं। जब तुम वही बात करते हो, कुछ नहीं सीखते, कुछ नहीं समझते, तो वो रिपीटेशन है। जैसे जैसे हम मेडिटेट करते गए, जैसे जैसे हमारे मेडिटेशंस बढ़ते गए, फोकस बढ़ता गया, क्या हमारे बिहेवियर में, हमारे सोचने में, हमारे प्रतिक्रियाओं में, रिएक्शंस में, हमारे रेस्पॉन्सेस, प्रतिसाद में, हमारे चिंतन मनन में, हमारे दृष्टिकोण में, हमारे किसी भी चीज को देखने के नजरिए में क्या कोई फर्क नहीं पड़ा? 100% पढ़ते गया, right? So there are changes in everything as we kept on meditating that same meditation, but every meditation was a redoing, and as we kept redoing our meditations, our behaviors, our thoughts, our thinking processes, our perspectives, our emotional control, our control on our 5 sense organs, on our physical body, on all our movements,
so much of control we were able to get. Isn't that so? Right? So redoing is learning, deepening what you have learned. अच्छा सीख गए तो अभी उसको और समझो, जैसे हम कहते हैं ना शब्दार्थ, उसके बाद में उसका भावार्थ, फिर कहते हैं उसका गुढ़ार्थ। वही शब्द है लेकिन सिर्फ शब्द का अर्थ समझेंगे, फिर से पढ़ेंगे तो उसका भाव, अच्छा अच्छा कहना क्या चाहते हैं, ओ ओके ओके ये कहना चाहते हैं, तो भावार्थ मिलेगा। फिर ओ इसमें और डीप मीनिंग है तो ये सूक्ष्म अर्थ मिलेगा, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म में जाएंगे। हर बार भगवत गीता आप पढ़ोगे, हर बार कुछ ना कुछ नया समझेगा। राइट? तो ये क्या हो रहा है, द डीपनिंग ऑफ अवर लर्निंग। योग सूत्र, हम आई थिंक कितनी बार हम स्टडी कर चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले ममता हम लोग बात कर रहे हैं कि नहीं नहीं फिर से योग सूत्र को पढ़ते हैं, भगवत गीता होते ही योग सूत्र का अभ्यास फिर से करते हैं। हर बार क्योंकि हमने योग सूत्र का अभ्यास किया है, हमने नई 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 चीजें उसमें से जानी है, उसमें से सीखी है। तो जो भी सीखा है उसका जो अर्थ है, वो जो सीखना है, द लर्निंग, डीपनिंग व्हाट यू हैव लर्न्ड, intensifying what you have learned, taking the root of your understanding deeper into your flesh and bone। तो वो जो समझदारी है ना, अब जैसे ये बात अच्छी तरह समझ गई है कि कोई नहीं मरता, आत्मा अमर है, ये शरीर अगर छोड़ दिया है तो कहीं फिर जन्म होगा। और अगर कर्म के ऋणानुबंध अगर कोई बाकी है, अगर कर्मा कुछ बाकी है तो वो हमारे जीवन में फिर से आएंगे। ये बात को अभ्यास करके 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 इतना अंदर तक बैठ गया कि अब कोई दुख नहीं होता। और क्या जिंदगी का ध्येय यही नहीं है कि दुख ना होना, दुख का ना होना? तो क्या 100% सुखी है? नहीं नहीं नहीं, आज भी गुस्सा आता है, कभी कभी, कभी कभी चिढ़ भी जाती हूँ, कुछ बोल भी देती हूँ, होता है, रिएक्शन भी आते हैं। लेकिन those are not very important things. The things that matter in life, the important things of life, those are very clear. The understanding, the perspective of it is so very clear. Yeah. So what she's saying over here कि ये मांस हड्डियों में हमारी ये समझदारी बस जाती है। So while redoing, you are quite attentive। तो दोबारा बरसों से मेडिटेशन कर रहे हैं, रोज उसी समय पे ध्यान लगाने बैठ जाते हैं, लेकिन हमारा ध्यान और ज्यादा लगाते हैं। So you are very attentive even though you are doing it every day, right? You love that redoing। और देखो इतने सालों से क्यों रोज रोज कर रहे हैं हम लोग ये, हाँ, कुछ नहीं करने, द आर्ट ऑफ नॉन डूइंग, हाँ, अकर्म। ये अकर्म हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अकर्म करने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि अकर्म पे हमारा प्रेम है, क्योंकि हम शून्य में जाना बहुत अच्छा लगता है। हम शून्य का जो कोई कारण के बगैर जहाँ पे जो खुशी मिलती है, विदाउट एनी कॉज, अ कॉजलेस joyfulness, the peacefulness, the calmness that we experience over there। So we love redoing because learning is taking place and your understanding is becoming clearer by the redoing। और समझदारी बढ़ती जाती है ये करने से, दोबारा दोबारा करने से। आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल फ्रेंड्स, लाइक मेडिटेशन का ही मैं एग्जाम्पल कैरी फॉरवर्ड करती हूँ कि मेडिटेशन रोज रोज करते हैं, सेम मेडिटेशन, बैठना वही है, शून्य में जाना वही है, प्रोसेस वही है, फिर भी उसमें से जो एहसास आता है वो अलग अलग चेंज होते जाता है। लाइक आई एम श्योर ममता यू विल से दैट 40 days mandala, it keeps changing, right? Weekly, after 21 days there's a change, after 40 days there's a change, and then you want to repeat the 40 days again। so कुछ सालों तक तो रंग दिखते थे, शरीर में संवेदनाएं महसूस होती थी, वाइब्रेशंस महसूस होती थी कुछ सालों तक, ओके।
और कुछ सालों तक वही स्थिति में रहते थे। फिर जैसे जैसे अभ्यास बढ़ते गया, तब ध्यान में और उसमें मजा भी बहुत आता था। वाह वाह, क्या पर्पल कलर है, क्या ऑरेंज कलर है, राइट। सो देयर वाज सो मच ऑफ जॉय। अगर कलर नहीं दिखा मेडिटेशन में तो ओ आज कुछ नहीं था, आज मेडिटेशन में कुछ हुआ नहीं, बिकॉज वी आर सो यूज्ड टू कुछ होना, राइट। समथिंग हैज टू कीप हैपनिंग। देन जैसे जैसे थियोरेटिकल भी अभ्यास करते गए, फिर हमारे ध्यान में आया कि अरे अरे, जब योग पतंजलि योग सूत्र जब पढ़ते गए, तब ध्यान में आया कि अरे अरे, यही संवेदनाएं हैं, यही रंग है जो हमें अटकाए रखे हुए हैं। बिकॉज वी गॉट अटैच टू दोज मेडिटेशनल एक्सपीरियंसेस, we got attached to those experiences, so we got stuck. And then we had to let go of all meditative experiences. So धीरे धीरे ये over a period of years we understood. फिर विजन्स आते थे, कभी कभी फ्यूचर या पास्ट लाइफ के विजन्स आ जाते थे, कभी कभी कुछ एक पूरी कहानी समझ में, कभी बहुत बार जो भी हमारे साथ हो गया है उसका रियलाइजेशन आता था, फिर उसके इंसाइट्स मिलते थे, फिर अंडरस्टैंडिंग्स मिलती थी, फिर समझ में आता था ओ मैं ऐसी क्यों, कभी समझ में आता था ओ मेरी बहन ऐसे क्यों है, अच्छा अच्छा ये जो ऊपर से उसका बिहेवियर दिख रहा है वो ये नहीं है, उसके पीछे ये वाला कारण है। और वो कारण इतना अद्भुत होता था कि बिल्कुल मन शांत और सुकून में चला जाता था। एंड देन देयर इज सो मच ऑफ forgiveness, and there is so much of gratitude, and there is so much of love that would come out of that understanding. And then came a point when even those understandings, insights, realizations, all the, coding and decoding, even that had to be given up. If you want to connect to the Brahman, पतंजलि योग सूत्र, भगवत गीता, उपनिषद, ईशावास्य, केन, कठ, इन्होंने यही बताया कि अगर ब्रह्म से जुड़ना है, अगर आत्मा से जुड़ना है, तो सब कुछ छोड़ना होगा। सिर्फ मन का शटडाउन नहीं, ये बुद्धि सब कुछ छोड़ना होगा, बिल्कुल शून्य में जाना होगा। हाँ, फिर उसका प्रयास, उसका अभ्यास शुरू हुआ। कहने की बात यह है कि जब जब हम रीडू करते हैं तो हमें उसमें से रोज नया कुछ सीखने को मिलता है। So, and when in repetition, so you love that redoing because learning is taking place and your understanding is becoming clearer by the redoing. In repetition there is passivity, no attention, right? अगर repetition है तो उधर कुछ ध्यान नहीं है। And when you are not attentive, learning does not take place. अगर तुम्हारा ध्यान नहीं है तो तुमने क्या सीखा, क्या समझा, कुछ भी नहीं, right? When you are passive, when you are inattentive, then the movement of creativity that takes place in the learning cannot take place. सीखने से गतिशीलता मिलती है, सही दिशा में गति मिलने से जो हमारा ध्येय है वो ध्येय की प्राप्ति हमें होती है। If we are attentive, then we move in the right direction, then we are able to achieve or we are able to attain whatever our aim was at that point of time, right? So but if we are not attentive, no creativity will happen, no insights, no realization, nothing will happen. The movement of creativity requires the light of your attentiveness, your alertness, your receptivity. अगर मेरे अंदर की आत्मा को दृश्य बनना है तो मुझे 100% ध्यान देना होगा, अलर्ट रहना होगा और मुझे रिसेप्टिव भी रहना होगा। जो भी कुछ हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, उस स्वीकार में भी मुझे रहना होगा। तो स्वीकार भी चाहिए और पूरा 100% ध्यान भी चाहिए, प्लस अलर्टनेस चाहिए। हाँ, नजर हटी दुर्घटना घटी, ये नहीं होना चाहिए, right? When you repeat, there is no receptivity. When you repeat, there is no learning. You repeat because it has to be done. रिपीटेशन में क्या होता है, बस करना है इसलिए करना है, रोज वही करते हैं,
तो करने का तो मैं फिर भी समझ सकती हूँ, ध्यान नहीं देके करते, रोज वही बोलते भी है, उसी बात को कितनी बार दोहराते हैं। यू नो आई सी फीमेल, स्पेशली, आई डोंट नो, आई एम, बहुत ज्यादा मेल इंटरेक्शन मेरा नहीं है, लेकिन मैं देखती हूँ फीमेल वही बात सहेली को कहेंगे, वही बात बाई को कहेंगे, वही बात बहन को कहेंगे, माँ को कहेंगे, सास को। यू कीप रिपीटिंग, व्हाट इज योर पॉइंट? So when at some point when I understood this thing, अगर मेरे दिमाग में थॉट रिपीट हो जाता है दूसरी बार, मैं बहुत अलर्ट हो जाती हूँ और फिर खुद को लेके बैठती हूँ, क्यों रिपीट हुआ? आई हैव टू अंडरस्टैंड कि क्यों रिपीट हुआ, व्हाट एम आई वरीड अबाउट। आई गिव यू अ वेरी वेरी सिंपल एग्जांपल। ओके, किराने वाले से मुझे दुकान में से ये चीज लानी है, थोड़े आधे घंटे बाद शाम को वो चीज लानी है, हाँ, फिर थोड़ी देर में, अरे मिस्टर कुला मुझे प्लीज याद कराना, शाम को मुझे ये चीज लेनी है। कितनी बार उसे रिपीट करते हैं? फिर खुद को पूछो कि भाई क्या है, डोंट यू ट्रस्ट योर मेमोरी? अच्छा, इफ यू डोंट ट्रस्ट योर मेमोरी, राइट इट ऑन अ पेपर, बट डू नॉट रिपीट दिस। ये हो गया अभ्यास। हाँ, तो प्रैक्टिकल लाइफ में अभ्यास हम कैसे करेंगे? कोई चीज का रिपीटेशन नहीं करना है। अगर भूल जाओगे, डर है, तो लिख के रखो, आता है ना लिखना पढ़ना, प्रॉब्लम किधर है? राइट, ओके। लेकिन रिपीटेशन को रोको, और वही अभ्यास है, वही प्रयास है जो हमको करना है। अभ्यास इज नॉट कंपल्शन, इट इज नॉट रिपीटेशन, इट कैन नॉट बी मैकेनिकल। अभ्यास कंपल्सरीली नहीं होता, स्व इच्छा से होता है। इसको स्वाध्याय भी बोलते हैं। हाँ, स्व इच्छा से हम करते हैं। इट इज द स्ट्रोक ऑफ जीनियस दैट बाय रीडूइंग द थिंग दैट यू हैव एक्सेप्टेड डूइंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन, फॉर द सेक ऑफ प्यूरिफिकेशन, यू डू इट अटेंटिवली, लविंगली, विथ ऑल द सेंसिटिविटी एट योर कमांड। अगर तुम अभ्यास करते हो तो तुम कुछ सीखना चाहते हो। अगर सीखना चाहते हो, कुछ समझना चाहते हो, तो सीखने समझने से तुम चाहते हो कि कहीं ना कहीं विचारों की शुद्धि, शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि, आपको जो शुद्धि समझनी है, लेकिन कहीं ना कहीं शुद्धि होते रहे। और अगर हमें ये शुद्धि होनी है, तो बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से, जितनी भी संवेदनशीलता हमारे में है, वो सारी संवेदनशीलता लगाकर हमने वो काम करना होगा। प्यार से, ध्यान से, लविंगली, attentively, and with all the sensitivity at your disposal, you will have to do that thing, right? So repetition is passivity, redoing is active, alert and attentive. ध्यान नहीं है, रिपीटेशन। ध्यान है तो रीडूइंग। तो यहाँ पे एक्टिव हो, अलर्ट हो और अटेंटिव हो। इन रिपीटेशन यू आर लुकिंग फॉर एक्सपीरियंस। अच्छा, और एक फर्क देख लो इस रिपीटेशन और रीडूइंग के बीच में, जो फर्क हम लोग, डिफरेंस जो हम लोग देख रहे हैं, देर इज वन मोर थिंग। इफ यू आर रिपीटिंग, अगर तुम ध्यान नहीं दे रहे हो और बस कल किया था, आज वापस, थोड़ी देर पहले किया था, अभी वापस, अगर तुम वापस वापस कर रहे हो, तो उसके पीछे सूक्ष्म में, सुप्त मन में पता है क्या क्या है? यू आर लुकिंग फॉर एक्सपीरियंस। आप कोई ना कोई अनुभव लेना चाहते हो। जब रिपीटेशन होता है तो अनुभव लेना चाहते हो। वॉट डिड आई गेट आउट ऑफ इट बाई डूइंग दिस? आई डिड जप फॉर 3 months. वॉट डिड आई गेट आउट ऑफ इट? 3 महीने मैंने जप किया, क्या मिला मुझे इसमें से? आई वॉज स्पेंडिंग टाइम इन साइलेंस, मैंने मौन रखा। वॉट डिड आई गेट आउट ऑफ इट? क्या मिला मुझे उसमें से? रिपीटेशन इज रिजल्ट ओरिएंटेड। कहने की बात यह है कि रिपीटेशन में तुम्हें सिर्फ परिणाम चाहिए। एक्विजिशन ओरिएंटेड, एक्सपीरियंस ओरिएंटेड, तुम्हें परिणाम चाहिए, अनुभव चाहिए। तुमने बस वो किया, ये तुम्हें पावती चाहिए कोई ना कोई। ओके, बट लर्निंग इज नॉट एक्सपीरियंस्ड ओरिएंटेड। और जो जब कब कुछ सीखते हैं, कोई अभ्यास जो होता है, जो लर्निंग होता है, ये लर्निंग में अनुभव हम नहीं ढूंढ रहे हैं, राइट? सो
रिपीटेशन इज रिजल्ट ओरिएंटेड। देखो अभी, लुक, when we take a meal, every day we take a meal, or perhaps in a day we take twice, we eat twice a day, isn't it repetition? रोज खाना खा रहे हैं, पैदा हुए तभी से, दिन में एक बार, अच्छा चलो दो बार, तो सब लोग ही खाना खा रहे हैं, राइट? यू आर रीडूइंग इट एवरी डे एंड यू एंजॉय डूइंग इट। रोज ही खाना खाते हैं और रोज ही खाने में मजा आता है। यू डू नॉट ईट फॉर द एक्सपीरियंस। तो तुम्हें नहीं नहीं खाने का अनुभव कैसा होता है ये मैं देखना चाहती हूँ। तो अनुभव के लिए तुम खा रहे हो? बिल्कुल नहीं। बट यू टेक अ मील बिकॉज दैट नरिशमेंट बिकम्स द सब्सटेंस ऑफ योर बॉडी। लेकिन फिर भी दिल में दो बार खाते हो। अच्छा, खाने में भी वैरायटी लेते हो ताकि शरीर को जो जो आहार की जरूरत है, जो जो विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, जो भी हमारे शरीर को जो भी जरूरत है, ये जरूरत उस अन्न में से पूर्ण होती है। खाने का कंटाला आया है कभी किसी को? कि यार क्या है ये रोज दो दो बार बैठ के खाना खाना? नहीं, क्योंकि इट्स नॉट एन एक्सपीरियंस, it is something that you are redoing because you know that you are going to be nourished by it. Okay, so in the same way, when you redo things and learn, that becomes the substance of your consciousness. तो जब, जैसे मैंने अभी कहा, तो हमारी चित्त भूमि बदल जाती है। जब हम कोई भी चीज पूरे ध्यान से, एक्टिवली, अलर्टली, अटेंटिवली करते हैं, तो हमारी चित्त भूमि बदल जाती है, हम एकाग्र चित्त में आ जाते हैं। इट डज नॉट रिमेन नॉलेज, अ फॉरेन एलिमेंट इन कॉन्शियसनेस। नॉलेज इज अ फॉरेन एलिमेंट बिकॉज इट हैज वर्ड्स, बट अंडरस्टैंडिंग हैज नो वर्ड्स। देखो कितनी सिंपल, सिंपली यहाँ पे वो कह रही है, ज्ञान जो है ना, इसमें शब्द होता है, शब्द होते हैं। नॉलेज हैज वर्ड्स, लेकिन अंडरस्टैंडिंग, समझदारी को कोई कौन से शब्द लगते हैं? समझदारी को कोई शब्द नहीं लगते। हम कहते हैं ना, समझदारी को इशारा काफी है, शब्दों का आधार नहीं लेना पड़ता है, राइट? इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, द एनर्जी कंटेन्ड इन द वर्ड्स, दैट इज द मीनिंग, आर कन्वर्टेड, दे आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अंडरस्टैंडिंग। जब हम सीखते हैं तो शब्द सिर्फ शब्द या ज्ञान में हमारे मेमोरी में जाके बैठ गया। बस जब जरूरत पड़ेगी उस शब्दकोश को खोलेंगे और बड़े बड़े शब्द यूज करेंगे, और उसमें से ये मिलेगा वो मिलेगा, जो भी लेक्चर देंगे, पैसे मिलेंगे, जो भी कुछ हम करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है। जब हम सीखना चाहते हैं तो वो जो, जैसे मैंने कहा पहले, शब्द का अर्थ सिर्फ पता होता है। क्या सीखे? कुछ नहीं, कि ये शब्द का अर्थ ये होता है, इतना ही सीखे। यानी यानी जो हमारे अंदर जो जीवात्मा है, इसको आत्मा कहते हैं, नथिंग बिग, ऑलराइट? दैट इज जस्ट द वर्ड मीनिंग। बट बिकॉज वी वांट टू लर्न, वी विल कन्वर्ट दैट वर्ड इनटू अ मीनिंग। ओके, अच्छा, आत्मा का मतलब क्या होता है? देन यू ब्रेक अप द वर्ड। और देव का मतलब क्या होता है? देन यू, अदरवाइज देव, हाँ ये देव वो देव, हाँ ठीक है देव है, बट उससे आगे कुछ भी नहीं। देन यू अंडरस्टैंड देव यानी वन दैट इज एनलाइटेंड, जो प्रकाशित है, जो प्रकाश, जो तेजोमय है, जो चैतन्य है, जो जो जिससे प्रकाश मिलता है, उसको कहते हैं देव। तो अब शब्द को अर्थ, राइट, एंड कन्वर्टेड, दे गेट ट्रांसफॉर्म्ड, और फिर समझ में आता है, अच्छा, दिस इज द मीनिंग ऑफ देव। ऑल राइट, नाउ आई लुक एट देव वेरी डिफरेंटली, because now I'm looking at all our gods as enlightened beings, and not just, you know, whatever stories that we have heard about it, right? I think all my friends, you will remember कि हमने जब योग शिक्षक के, हमारे टीचर्स ट्रेनिंग में, हमने अलग अलग प्रार्थनाएं सीखी। हम अथर्व शीर्ष बोलते थे या आत्मशतक गाते थे। तो आत्मशतक तो पहले स्टार्टिंग में, या योग सूत्र, हाँ, अथ योगानुशासनम, हमारी शुरुआत ही हम पठन से की थी इंस्टीट्यूट में, राइट?
अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, सारा ध्यान हमारा हाँ शब्द करेक्ट आना चाहिए। लेकिन फिर बाद में जैसे उसका अभ्यास बढ़ते गया, हर योग चित्त वृत्ति निरोध, क्या मतलब है हर शब्द का, हर शब्द को सीखा। ओके, फिर उसके बाद में ऊपर का सूत्र, नीचे का सूत्र, आगे पीछे का सूत्र, उसकी कनेक्टिविटी लगाई, हमारा अंडरस्टैंडिंग चेंज होते गया। फिर पहला जो समाधि पाद है, इसका हमने कनेक्टिविटी साधन पाद से लगाई, उसको वहां से उठा के कैवल्य पाद से लगाई। वी वेंट फ्रॉम द मीनिंग, ओ सी, कैवल्य पाद का कोई सूत्र पढ़ते वक्त हाँ साधन पाद में इसका ये जवाब है, या इसका ये रिलेटिव सूत्र है, रिलेटेड सूत्र है, या समाधि पाद में इसका रिलेटेड सूत्र है। सी, over a period of time, our understanding kept on deepening, deepening and deepening. Because of what? Because of abhyas. All right? और अभ्यास की आदत भी बहुत अच्छी पड़ गई, शायद स्कूल कॉलेज में इतना नहीं किया होगा जो अभ्यास हम कुछ सालों से करते आ रहे हैं, और अभी भी तृप्त नहीं है। हम और भी उसे समझना चाहते हैं, हम और भी दोबारा दोबारा उसका, वी वांट टू रीडू द स्टडी ऑफ योग सूत्र, और दिस इज द थर्ड टाइम दैट वी आर रीडूइंग द स्टडी ऑफ insights into Bhagavad Gita by Vimla Thakar, right? So all of us, we are back on the table, we are back on the study table, right? इसको कहते हैं अभ्यास। So in the process of learning, the energy contained in the words, that is the meaning, are converted, they are transformed into understanding. But knowledge is a collection of words, of ideas, theories, which are transferred to memory for the use when necessary. हाँ, ये बात ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ज्ञान जो है शब्दों का से बना हुआ है, और उसको हम स्मृति में बिठा देते हैं कि हाँ जब जरूरत पड़ेगा तब स्मृति से निकाल लेंगे। लाइक अ बैंक बैलेंस, जैसे पैसे हम बैंक में रखते हैं, उस तरह हमारा ज्ञान जो है हमारी स्मृति में हम रखते हैं। बट एज योर हेल्थ इज नॉट अ बैंक बैलेंस, it is something that manifests itself every day. It is used through your movement, and the more you use it, the healthier you become. लेकिन देखो, अगर हमारी जो ताकत है, हमारा जो आरोग्य है, इसको तो हम स्मृति में नहीं रख सकते। इसका तो घड़न रोज होता है, राइट? आरोग्य को हम चलो आज 1 महीने का खा लिया, अब हो गया, 1 महीने के बाद खाएंगे, that is not going to happen, because every day you have to nourish, right? That which is for our nourishment, we are not repeating, we are redoing. इसलिए रोज रोज जिंदगी भर 2 बार खाना खा के भी हमें खाना खाने का कंटाला नहीं आता। क्यों? क्योंकि वही खाना हमारे शरीर का धारण करने वाला है, या इट्स गोइंग टू nourish our bodies, right? So the energy consumed gets replenished by the interaction, by the expenditure. तो जो खाना खाया, ताकत आई, ऊर्जा आई, एनर्जी मिला, एनर्जी को खर्च किया, हैप्पीली खर्च किया। अगर खर्च करते हो तो दोबारा एनर्जी लेते हो, दोबारा एनर्जी लेते हो फिर खर्च करने के लिए। ये तो इंस्टेंट ट्रांजैक्शन है, ये कंटिन्यूस ट्रांजैक्शन है, राइट? सो अभ्यास इज रीडूइंग लविंगली फॉर लर्निंग, फॉर एजुकेशन। क्यों करना है अभ्यास? सीखने के लिए, समझने के लिए, जिंदगी में कोई कुछ बातों को समझने के लिए। एंड एजुकेशन डज प्यूरिफाई, इट सफिस्टिकेट्स, इट रिफाइंस। और जब अभ्यास अच्छा होता है ना, तो हमारी शुद्धि जरूर होती है। ओके फ्रेंड्स, अगर आप शुद्धि इस शब्द से अब भी अगर आप कंफ्यूज्ड है, तो अगेन आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल। क्लैरिटी ऑफ माइंड इज प्यूरिफिकेशन। अगर कोई विषय है या शब्द है
जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। जब वो समझ में आता है तो थोड़ा क्लियर हो जाता है, फिर उसका मीनिंग समझ में आता है तो और क्लियर हो जाता है। फिर वो मीनिंग का के पीछे जो कहने की बात है, जिसको हम बोलते हैं द एसेंस, वो समझ में आता है तो और क्लैरिटी मिलती है। यानी हमारी बुद्धि का क्या हो रहा है, शुद्धि हो रही है। इज इट क्लियर? तो शुद्धि यानी डोंट गो अबाउट इमेजिनिंग दिस और दैट। शुद्धि इज वेर एवर यू फाइंड मोर क्लैरिटी, मोर फोकस, देर इज नो मडल्ड अप। जैसे वो मिट्टी अगर पानी में मिक्स्ड है तो क्लियर नहीं है ना। जैसे वो मिट्टी बैठ जाती है, पानी क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, हम नीचे झुक कर देखेंगे तो हमें हमारा रिफ्लेक्शन भी उसमें नजर आता है। तो दैट इज शुद्धि। ये क्लैरिटी जो है, ये क्लैरिटी शुद्धि है। तो वो अभ्यास से ये शुद्धि होती है। इट रिफाइन्स, इट सफेस्टिकेट्स। ओके, यू नो, रिफाइनमेंट इज प्यूरिटी। रिफाइन करना यानी शुद्ध करना, जो भी अशुद्धि है उसको निकालते जाना यानी रिफाइन करना। when the darkness of ignorance is eliminated, when a chaotic collection is converted into an orderly understanding, ऑब्वियसली प्यूरिफिकेशन टेक प्लेस। पहले मुझे नहीं समझ रहा था, न समझने की स्थिति को अंधकार कहते हैं, अविद्या कहते हैं, इग्नोरेंस कहते हैं। when I was not understanding, I was ignorant. Now I am understanding. This has come through purification. क्लैरिटी मिल गई, समझदारी बढ़ गई, राइट? तो ये शुद्धि हो गई। प्यूरिटी इज ऑर्डरलीनेस। प्यूरिटी यानी गैर समझ नहीं, गड़बड़ गड़बड़ नहीं, एक शिस्तबद्ध जिसको हम कहते हैं, वेरी क्लियर। प्यूरिटी इज इंटेलिजेंस। प्यूरिटी यानी बुद्धिमत्ता बनती है। प्यूरिटी इज क्लीनलीनेस। स्वच्छता भी प्यूरिटी है। नो टॉक्सिन्स, और दूषित कोई कोई जहर हमारे इसमें नहीं आना चाहिए, मन में नहीं आने चाहिए। कौन से जहर है हमारे मन के? व्हाट आर द टॉक्सिन्स ऑफ अवर माइंड? व्हाट आर द टॉक्सिन्स ऑफ अवर मेंटल बॉडी? द टॉक्सिन्स ऑफ वैनिटी। यस ममता, गो ऑन, टेल मी, गो ऑन, से इट। यस, षड रिपु आते हैं। षड्रिपु आते हैं। प्राइड है, गर्व, हाँ, वैनिटी है। ये वैनिटी, प्राइड, नो टॉक्सिन्स ऑफ डाउट, शंका, संशय। हाँ, पतंजलि के अंतराय में से सबसे घातक संशय, जनरेटेड बाय इग्नोरेंस। कब संशय में आते हैं हम? जब हमें क्लियरली पता नहीं होता, तब हमें संशय आता है। अगर क्लियरली पता, बात समझ में आ गया, हाँ अच्छा ऐसा है क्या, ओके ओके, तब तक आई वॉज डाउटिंग, ऐसा होगा, वैसा होगा, इसलिए किया होगा, उसलिए किया होगा। भाई एक ही बार सवाल पूछ के जवाब ले लो, सोचते मत बैठो, संशय में मत रहो, डाउट में मत रहो। सो डाउट कम्स फ्रॉम इग्नोरेंस। Ignorance about one's own nature, ignorance about the sense of discrimination between the imperishable and the perishable, the unchanging principle manifesting through changes. अविद्या, अंधकार जिसको बोला है, अज्ञान जिसको बोला है, अज्ञान का अंधकार। विमला जी, हम भौतिकता में अगर आएंगे, ये सोचा होगा, वो सोचा होगा, वो तुरंत उठा के हमें ब्रह्मांड में ले जाती है। कौन सी अविद्या, कौन सा अंधकार? विच इग्नोरेंस आर वी टॉकिंग अबाउट? इग्नोरेंस ऑफ माई ओन नेचर, यानी हु एम आई। खुद को आरती समझती है, खुद को औरत समझती है, खुद को भारतीय समझती है। हु एम आई? द इग्नोरेंस ऑफ हु एम आई, दैट इज वन। दूसरा, द इग्नोरेंस ऑफ द सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन इम्पेरिशेबल एंड पेरिशेबल। लाइफ में कौन सी वो चीज है जो परमानेंट है और कौन सी वो चीजें है जो टेम्पररी है, राइट? सिंपल ये ले लेते हैं, लव कैन बी परमानेंट, अटैचमेंट टेम्पररी,
right? If you want, if I mean that is one of the examples that we are taking, right? But आया ध्यान में कि कौन सी चीज, ये जो आत्मा है ये अमर है, और पुरुष है ये अमर है, शिव अमर है, शक्ति जो है, प्रकृति जो है, ये तो बदलती है, और जो भी बदलता है वो, और वो पेरिशेबल है, आज है कल नहीं, हर एक चीज अब भी है अब भी नहीं, ये वाली सांस आई तुरंत चली गई, right? So even the breath is new, renewed every breath. You are life and death in every breath. You are living, you are being born, and you are dying in every breath. That is also not permanent. To think that the breath is permanent is also ignorance. ये भी अंधकार है, right? So the unchanging principle manifesting through changes, ये बदलती हुई, ये सगुण के अंदर जो निर्गुण छुपा हुआ है, जो निर्गुण है, वो सत्य है। बाकी ये जो भी सगुण है, नाम रूप गुण वाली जो भी चीजें है, जो आज है कल नहीं है। तो इस अविद्या की, इस अंधकार की, इस इग्नोरेंस की बात यहाँ पे विमला जी कर रही है। इसको आध्यात्मिक अविद्या, आध्यात्मिक अंधकार कहते हैं, right? This is spiritual ignorance, where we cannot discriminate between what is permanent and what is temporary, what is ever changing and what is never changing, right? So, and who am I? That is one more question, right? So yoga says that through abhyasa it is possible to dwell in the perishable, doing the karmas, that is to say, use the creative energies contained in the perishable material body as a sacrificial act. तो योग में ये कहा जाता है, ये सारी ऊर्जाओं का जो भी आप यूज करोगे, ये जो ऊर्जाएं हैं, आपका शरीर और मन जो माध्यम है, इनके माध्यम से जो भी आप करो, यद न समझ के करो। If you are looking for profit, if you are looking for results, you are looking for consequences, you are in andhakar. All right, right? So abhyasa is possible to dwell in the perishable, do the karma, that is to say, use the creative energies contained in the perishable material body as a sacrificial act. You cannot exist without karma. अब ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया, कर्म किए बगैर हम जी नहीं सकते, सांस नहीं लोगे तो जियोगे कैसे, right? So you cannot exist without karma, because the energies contained in your prakriti, in your material body cannot remain idle. हमारे अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो बस पड़ी रहेगी, चाहे वो शारीरिक ऊर्जा हो, चाहे आंखों की शक्ति हो, चाहे वो कोई भी शक्तियां आप ले लो, वो गतिशील ही रहती है। देर इज कॉन्स्टेंट मूवमेंट इन द एनर्जीज, एनर्जीज कैन नॉट लाई आइडल, इट विल मूव, इट कॉन्स्टेंटली मूव्स, राइट? सो कर्म तो होता ही है। इफ यू यूज देम इन द सैक्रिफिशियल स्पिरिट, देन रिफाइनमेंट टेक्स प्लेस। लेकिन यज्ञ समझ के अगर इस ऊर्जाओं की गति को आपने होने दिया, तो शुद्धि होगी, रिफाइनमेंट विल टेक प्लेस। ये जो यज्ञ समझ के आपने जो भी कुछ किया, यू नो, इन द सैक्रिफिशियल स्पिरिट, क्या मतलब होता है? ये यज्ञ समझ के करना मतलब उस वृत्ति से करना, उस एटीट्यूड से करना। यज्ञ के एटीट्यूड से कोई भी कर्म करना, इसका क्या मतलब होता है? यू नो व्हाट अ सैक्रिफिशियल स्पिरिट इज? नॉट एक्ट एक्सक्लूसिवली फॉर योर ओन बेनिफिट। ये पूरी किताब में विमला जी ने जो 1 लाइन क्वेश्चन एंड 1 लाइन आंसर दिए हैं, दे आर जस्ट टू गुड टू फैंटास्टिक। व्हाट इज सैक्रिफिशियल? यज्ञ क्या होता है? जो भी तुम करते हो, अगर तुम सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए नहीं करते हो, तो वो यज्ञ है। कोई भी माँ पूरे खानदान के लिए खाना पकाती है, खुद के लिए पकाती है? सिर्फ खुद के लिए पकाती है क्या? इनफैक्ट मैं बहुत गृहिणी को जानती हूँ, अगर वो एज पे अभी हम लोग पहुंचे हैं कि जहाँ पे बहुत बार ऐसे होता है कि घर में अकेले होते हैं, जाने दे खुद के लिए क्या बनाना,
नहीं बनाते हैं हम खाना। आई कैन सी रश्मि स्माइलिंग देयर, राइट, है ना। वी डोंट डू इट फॉर अवर सेल्फ, वी सेड यार खुद के लिए क्या बनाना, राइट। सो ये यज्ञ है, अगर हम सबके लिए करते हैं, सबके लिए करना, इसको सैक्रिफिशियल स्पिरिट बोला है। वेन यू डू अ यज्ञ इट डज बेनिफिट यू इनडायरेक्टली। तो क्या सबके लिए खाना पका है तो मुझे खाने को नहीं मिलता क्या? हाँ मिलता है, मना नहीं कर रहे हैं। it does benefit you indirectly when you put in the best that you have in a yajna, when you do use the creative energies in your eyes, ears, speech, sex, in every part of your being, not exclusively for yourself. When you share it with others, when you pour it out for others, the benefit is sure to come back to you without making you conscious of it. देखा, अब भी मैंने बोला ना कि जो अगर घर पे अकेले यार खुद के लिए क्या बनाना, यू आर कॉन्शियस कि यार खुद के लिए इतना मेहनत क्यों करना है, क्या पॉइंट है, जाने दो आज का दिन नूडल्स खा लेते हैं या समथिंग, समथिंग वे वी विल पुट अ शॉर्टकट, धिरडी बनवून घेऊया बस, बाकी काही नको स्वयंपाक करायला, वी गो इन टू दैट मोड. तो हियर शी इज सेइंग दैट हमारी अंदर जो भी ऊर्जाएं हैं, आंखों की, कानों की, बोलने की, सेक्स की, जो भी ऊर्जाएं हमारे अंदर है, ये ऊर्जाएं जब गतिशील होती है, जब इस ऊर्जा के माध्यम से कोई भी कार्य, काम, कर्म होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए नहीं, उसमें और दो चार जन का भी उनका भी फायदा होता है. बिकॉज द स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस poured इन द एक्ट. तो तुम वो करते हो तो वो किस एटीट्यूड से करते हो? यज्ञ के एटीट्यूड से करते हो. और सैचुरेटिंग और परमिएटिंग द एक्ट ब्रिंग्स बैक द बेनिफिट्स टू यू इनडायरेक्टली. और उसका फायदा तुम्हें डेफिनेटली मिलता है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो इनडायरेक्ट बेनिफिट है. हाँ, दैट देयर इज नो सेल्फ सेंटर्डनेस, there is no meanness in it, I-ness, in the sense के for me alone, वो नहीं है यहाँ पे. अभ्यास is for educating the senses. किस किस चीज का अभ्यास हमने करना है? हमारे इंद्रियों को अपने काबू में रहने का, अपने सीमाओं में रहने का, कहीं भी अतिरेक अतिक्रमण नहीं करने का, ये अभ्यास हमारे सारे इंद्रिय. हमारा शरीर, यहाँ पे भी कहीं अतिरेक नहीं होना चाहिए. द फिजिकल एग्जिस्टेंस, हमारा अस्तित्व, एडुकेटिंग देम, इनको अनुशासित करना होगा. वी विल हैव टू डिसिप्लिन देम, प्यूरिफाइंग देम, उनको शुद्ध करना होगा, शुद्ध रखना होगा, सो दैट दे आर कैपेबल ऑफ स्पॉन्टेनियस सैक्रिफिशियल एक्ट, कैपेबल ऑफ कर्मा, ताकि वो कभी भी क्रिया, गलती से भी मुझसे क्रिया ना हो, कर्म ही हो. यज्ञ के एटीट्यूड से पूर्ण कर्म, ब्रह्म, कंप्लीट कर्म, वेर यू आर कंप्लीटली गिविंग योर सेल्फ, वो कर्म करने के लिए की क्षमता बढ़ाने के लिए अभ्यास करना है. They do not get stuck up in kriya activity, which consists of being pushed around, being pulled around by the impulses in the body or the ideas in the mind. When you are pushed around, there is an inner compulsion. क्रिया में क्या होता है मालूम है? तो ध्यान नहीं है, रोज की बात है, बस ऑटो मोड में करते हैं, तो ये कर्म नहीं होता, ये क्रिया होती है. और क्रिया है ना, तुम्हें खींचती है. हमारे शरीर के अंदर की जो संवेदनाएं हैं, ये हमें खींचती है या ढकलती है, वो चीज करने में मजबूर कर देती है. कंपल्सरी होता है ये. All right. So there is compulsion in it. When you are pushed around, there is inner compulsion. Then it is a kriya or activity. And when it is the movement of your whole being in an unselfish way with the sense of yajna, then it is a karma. अगर स्वार्थ नहीं है और अगर पूरी तरह से तुम्हारा सारा ध्यान वहां पे है, जो भी कुछ कर रहे हो, जो भी करना हो रहा है उसमें है, तो ये कर्म बनता है. The Gita distinguishes between karma and kriya, action and activity, repetition and redoing. देखो हमने 3 स्तर पे इस चीज को देखा. एक है कर्म, दूसरी है क्रिया. एक्शन, कर्म यानी एक्शन, क्रिया यानी एक्टिविटी. कर्म यानी रीडूइंग, क्रिया यानी रिपीटेशन.
ऑलराइट, ये समानार्थी शब्द बने. इट इज इन अ वेरी सटल, इट इज अ वेरी सटल वे, because the Gita gives you the essence of the Ved and the Upanishads. The Veds and the Upanishads are the cows, and Sri Krishna is the milkman. He is milking the cows of the Vedas and Upanishads for Arjuna. The ancient Indians were essentially poets. They would put everything in a figurative language. कवि है ना, गीत है. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वेद और उपनिषद जो है ना, ये गायें हैं, हाँ, काउज है. और कृष्ण जो है वो ग्वाला है, जो उनका दूध निकाल रहा है. किसके लिए निकाल रहा है? अर्जुन के लिए निकाल रहा है. अर्जुन कौन है? हम है. हमारे लिए वो कर रहा है. राइट. सो दिस इज तो जो वेद उपनिषद का सार है, कृष्ण हमें वो सार पिला रहे हैं, सिखा रहे हैं. सो अभ्यास इज नेसेसरी. 100 बात की एक बात, अभ्यास करना जरूरी है, कर्म करना जरूरी है, क्रिया को छोड़ना जरूरी है. राइट. सो द रीडूइंग ऑफ थिंग्स विच यू हैव इंटेलेक्चुअली अंडरस्टूड इज नेसेसरी. कुछ तो भी अभ्यास किया, फिर उसकी समझदारी आई, तो उस समझदार के हिसाब उस समझदारी के हिसाब से हमारा व्यवहार होना चाहिए, है ना. वरना विरोधाभास आएगा. वॉट एवर आई स्टडी, वॉट एवर आई अंडरस्टैंड, आई विल बिलीव इन इट. वॉट एवर आई बिलीव हैज टू हैपन विद इन माई बॉडी एंड माइंड ऑन इट्स ओन. जबरदस्ती नहीं. Whatever I have understood, whatever lessons that I have understood, whatever that has become my belief system, I should be behaving according to that. If I have read the Gita, if I have understood something else from it, and then I'm behaving in a different way, then there is contradiction. I'm not on the same page. My energies are divided. I'm not together. Is this clear? Your और अच्छा, क्या महसूस होने वाला है, ये क्या बोल के होता है क्या? डिड आई एक्सपेक्ट माई फादर टू डाई एट दैट मोमेंट? नो, आई डिड नॉट. डिड आई एक्सपेक्ट टू फील दिस वे और दैट वे? नो, आई डिड नॉट. आई फेल्ट what I felt. It was spontaneous. But whatever I felt spontaneously, that was very much in sync with my belief system, which is very much in sync with my abhyasa. Good point. Right. Right. So abhyasa is necessary. First you have to understand it with the help of intellect, which can discriminate between things, which discriminates between the false and the real. तो अभ्यास से यथार्थ ज्ञान क्या है, यानी यथार्थ सत्य क्या है, what is the real truth and what is the relative truth. हाँ, रिलेटिव ट्रुथ जो है, जिसको माया को रिलेटिव ट्रुथ हम कहते हैं, क्योंकि अभी इस क्षण में हाँ सत्य है. मैं यहाँ पे हूँ, अभी इस क्षण में मैं यहाँ बैठी हूँ, तो मैं हूँ. आप है तो है, सत्य है. क्या ये परमानेंट सत्य है? इज दिस द इटर्नल ट्रुथ? नो. आफ्टर अनदर whatever 10 15 20 minutes, I will get up and go. I will not be here, I will be there. Get the point? So this is relative truth. Anything that keeps changing is relative truth. So I have मेरी बुद्धि, मेरे इंटेलिजेंस से मुझे समझना होगा कि कौन सा परम सत्य है और कौन सा बदलता हुआ है. Which is the eternal truth and which is the relative truth is what I will have to understand. Which is what is proper to be avoided, etc. That is your responsibility to go on redoing the way the brain has pointed out until it becomes a spontaneous movement. अभ्यास कब तक करना होगा? जब तक खुद ब खुद वो होते नहीं रहता. सांसों पे ध्यान रखना नहीं रहता था. सांसों पे ध्यान रखना, अगर ध्यान में भी बैठते थे स्टार्टिंग में, आनापान सती कर रहे हैं, आंखें बंद है,
सारा ध्यान अपने सांसों पे ले जा रहे हैं, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 1 श्वास, 2 श्वास, 3 श्वास, दिमाग गया, किचन में पहुंच जाएगा, अमेरिका चला जाएगा, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमने चला जाएगा। तो आदत नहीं थी। फिर अभ्यास, रोज अभ्यास, सालों साल अभ्यास, महीने महीने अभ्यास। अब कुछ कर रहे हो, आंखें बंद हो या खुली हो, सांसों पे ही ध्यान होता है। Like I keep saying, how long do you have to do abhyasa? How long do you have to make an effort? Only and only till it becomes effortless. बाद में वो स्पॉन्टेनियस एफर्टलेस अपने आप होने लगता है। समाधि की अवस्था जहां पे समत्व में हम है, वो उसका अनुभव धारणा ध्यान में सिर्फ मेडिटेशन में होता है। अब आंखें खुली हो, हम बच्चों के साथ खेल रहे हो, पिक्चर देख रहे हो, खाना पका रहे हो, समाधि अवस्था में सब कुछ हो रहा है, क्योंकि चित्त कैसा है? स्थिर है, समत्व में है। कोई भी ड्रामा चल रहा हो आजू बाजू में, हाँ, घर में, हर घर में ड्रामा चलता है, हर मोहल्ले में ड्रामा चलता है, हर नेबर्स के पास में ड्रामा चलता है, हर दुनिया में ड्रामा चलता है, कितने भी ड्रामा चलते हो, हमारा चित्त कैसा है? स्थिर, एकाग्र है, समत्व में है, समस्थिति में है, समाधि में है। हमको जो करना है सब करते हैं, एवरीथिंग इज बीइंग डन, बट वी आर in a state of spontaneous movement. So until it becomes a spontaneous movement, until it becomes your nature. अभ्यास कब तक करना होगा? जब तक कि ये सारी चीजें खुद ब खुद नहीं होती। एक बार खुद ब खुद होने लगेगी तो अभ्यास वहां पे वो वाला अभ्यास हो गया। If this point is clear, then let us proceed. Okay? अगर ये बात क्लियर हो गई हो तो आगे बढ़ते हैं। दिस इज अ क्लास, हाँ, ये वर्ग चालू है। दिस स्टडी इज नॉट अ मियर इंटेलेक्चुअल एब्स्ट्रैक्शन, नॉट अ थियोरी। हम कोई थियोरी डिस्कस करने नहीं बैठे हैं। वी आर स्टडिंग टूगेदर, एंड व्हेन आई स्टडी विथ यू, माय लर्निंग बिकम्स मोर प्रोनाउंस्ड, मोर जॉयस। मेरे बिल्कुल दिल की बात यहाँ पे हो रही है कि हम हम एक साथ अभ्यास करने बैठे हैं, और जब मैं तुम्हारे साथ अभ्यास करती हूँ, वो कह रही है, मेरा सीखना अधिक होता है। ओके? और ये सीखने का आनंद भी दुगना होता है। अगर मैं खुद अकेली बैठ के ये पढ़ती तो उसमें जो मुझे आनंद नहीं मिलता, उससे 1000 टाइम्स ज्यादा आनंद ये लाउडली पढ़कर आप लोगों के साथ बांटकर जो मिलता है। और सीखना समझना भी उतना ही अधिक होता है। दो आई सिट हियर एंड टॉक विथ यू, आई एम स्टडिंग, मैं ये पढ़ रही हूँ, हम लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन अभ्यास जारी है, आपका भी मेरा भी। How does the abhyasa take place? So that one is aware that the whole manifest worlds comes out of the unmanifest reality, so that one remains aware that life is full of two contradictory principles harmonized together in one wholeness, the unchanging principle of the Purusha, the Brahman, and the changing principle of Prakriti, matter, so that one remains aware that this body, which is condensed cosmos, contains both Purusha and Prakriti. The Purusha is the human body. In the human body is called as Atman, and of course Prakriti is Prakriti. तो किस तरह से अभ्यास हम करें ताकि हम जो है, दो है, हाँ, द्वैत है, द्वैत यानी टू प्रिंसिपल्स, वन इज द एनर्जी प्रिंसिपल पुरुषा, एंड अदर इज द फिजिकल प्रिंसिपल विच इज द प्रकृति। ये दोनों प्रिंसिपल है, ये दोनों मेरे अंदर है। ये तो बात मेरी समझ में आनी चाहिए कि हाँ, मेरे अंदर आत्मा है, ब्रह्म है, पुरुषा है। हाँ, तीनों का मतलब एक ही होता है, पुरुष, आत्मा, ब्रह्म। तो ये मेरे अंदर है, और ये जो मेरा शरीर है ये प्रकृति है। पुरुष जो है निर्गुण निराकार है, प्रकृति जो है ये त्रिगुणात्मक है। राइट? सो I will have to sit and study this.
ये अभ्यास, ये विरुद्ध लगता है हमें, कॉन्ट्राडिक्टरी प्रिंसिपल्स लगता है। पुरुष कुछ नहीं कर रहा, प्रकृति सब क्रिएटिविटी कर रही है, पुरुष ने बस उसको ये दे दिया है अपना उत्तरदायित्व उसको दे दिया है कि तुम क्रिएशन करो, तो वो करती रहती है। तो वो प्रकृति, ये विरुद्धाभास होता है हमें, हमें ऐसे लगता है कि ये दो अलग प्रिंसिपल है। तो कैसे हम ये समझे कि ये पुरुष और प्रकृति जो है ये हमारे अंदर स्थित है। You are aware that the matter and spirit do not exist separately. They do not have an existence independent of each other, exclusive of each other. They are mutually inclusive. अब ये तो हमने ऑलरेडी इसको काफी डिस्कस कर लिया कि पुरुष के बगैर प्रकृति नहीं, प्रकृति के बगैर पुरुष नहीं, शिव और शक्ति एक ही है, दोनों एक दूसरे के बगैर कहीं भी नहीं हो सकते। दे इंक्लूड ईच अदर, एक के अंदर दूसरा है, प्रकृति में पुरुष समाया हुआ है, पुरुष में प्रकृति पोटेंशियल फॉर्म में समाई हुई है। शक्ति इंक्लूड शिवा एंड शिवा इंक्लूड्स शक्ति। इट इज ब्यूटिफुल इन संस्कृत, दे आर कॉल्ड एज संपृक्त, संपृक्त। आई होप दैट आई एम सेइंग इट करेक्टली। इनको संपृक्त, बरोबर है जानवी शब्द? संपृक्त, संपृक्त बरोबर है बरोबर। ना? हाँ, संपृक्त, संपृक्त का मतलब होता है दे ड्वेल इन ईच अदर, दोनों एक दूसरे में रहते हैं। ये बहुत सुंदर शब्द संस्कृत में है, संपृक्त। शिव और शक्ति आर इनसेपरेबल, ये अविभाजनीय है, इनको अलग नहीं कर सकते। द चेंजिंग एंड द अनचेंजिंग प्रिंसिपल ड्वेलिंग इन ईच अदर, enriching each other, the stability of that divinity, that unchanging Brahman enriches the perishable changing material world, right? So ये जो है शिव और शक्ति दोनों हमारे अंदर है, हम दोनों हैं, ये एक के बगैर दूसरा नहीं हो सकता। अगर मेरी शक्ति से शिव निकल गया तो मेरी शक्ति क्या हो जाएगी? शव बन जाएगी, राइट? द बॉडी विल बी अ डेड बॉडी, राइट? एंड विदाउट द आत्मा द बॉडी कैन नॉट एग्जिस्ट, ऑलराइट? एंड फॉर द आत्मा द बॉडी नीड्स टू एग्जिस्ट, राइट? बोथ कैन नॉट डू। तो हमारे यहाँ सबसे सुंदर प्रतीक इसका, सी सच ब्यूटिफुल सिंबॉलिक representations, creative representations we have come from our rishis and from those who studied life. अर्धनारीश्वर, अगर अर्धनारीश्वर की कर्नाटका में तो जगह जगह पे अर्धनारीश्वर की बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं, और अर्धनारीश्वर का चित्र भी मिल जाए और अगर आप अर्धनारीश्वर को देखते बैठो नजर नहीं हटती। You just can't stop looking at it. It is such a amazingly beautiful. There was a point in time when I was doing this mantra that Shri M had given, ki Om Hrim Shri Gurubhyo Namaha. It is it is a mantra where you are asking for guidance. Okay, कि गुरु, जो भी गुरु है वो गुरु मुझे गाइड करे। तो ओम ह्रीम श्री गुरुभ्यो नमः। और उन्होंने करने को कहा था कि आपकी हृदय को इमेजिन करो, वहां पे एक कमल है, ये इमेजिन करो, और उस कमल में तुम्हारे गुरु के पादुका है, और फिर ये मंत्र बोलना है ओम ह्रीम श्री गुरुभ्यो नमः। अब हमारा सुप्त मन जो है ना, ये क्या सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करता, तो मुझे कभी भी वो सिर्फ पादुकाएं दिखती नहीं है, हमेशा पादुका में एक मेल फुट दिखता है मुझे जिस पर कड़ा है, और एक फीमेल फुट दिखती है मुझे। द लेफ्ट इज द फीमेल एंड द राइट इज द मेल फुट, एंड द फीमेल फुट इज ब्यूटिफुल विथ पैंजन, the anklet. Always that is how it appears in my inner eye. Always, it's spontaneously on its own. I don't create it, it just happens. Okay, because then I realize, because all the time I am in awareness of both these energies. Even if I'm standing, I will make sure that I'm standing on both my feet so that both my energies are well balanced. If I'm sitting, I try to sit in such a way
that, both my hip joints are resting on the ground in such a way that both my energies are grounded. So maybe somewhere the conscious enters into the subconscious, which enters, permeates the unconscious. It goes deeper and deeper, and it comes up in our behavior, in our visions, in our dreams, in our meditative experiences. All right. So ये जो अर्धनारीश्वर है, शिव शक्ति का बहुत ही सुंदर रूप है, ये हमारे में दोनों बसते हैं. ओके, आई थिंक वी विल स्टॉप हियर, क्योंकि आगे वो सवाल पूछती है, हाउ एंड वेयर डज दिस अप्लाई विद इन. तो ये हमारे अंदर कैसे वर्क करता है, दिस वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास. ऑलराइट. सच अ वंडरफुल एक्सप्लेनेशन ना, क्या माइंड ब्लोइंग है. यस कल्पना, हाय. आता तुम्ही सांगत होते की ते कृष्ण हे करतो, तिच्याकडे एक इतका सुंदर श्लोक आहे त्याच्यामध्ये. बोला ना प्लीज. हा, तर तो गीता महात्म्यामध्ये त्यांनी तो श्लोक दिलेला आहे तिथे, की सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत. ब्युटिफुल, ब्युटिफुल. मला तो श्लोक आठवला म्हणून मी मध्ये थांबले होते. इतकं सुंदर एक्सप्लेनेशन त्याचं, इतकं आता मला पहिल्यांदा मिळालं. हा, सो तेच त्या म्हणतात की खूप सुंदर त्याचं श्लोक आहे, आणि इंग्लिश मध्ये एक्सप्लेनेशन दिलं, आणि आता तुम्ही श्लोक म्हणून दाखवला. सो देअर वी हॅव इट. सच अ ब्युटिफुल थिंग, वंडरफुल. येस. अँड पार्थ इज Arjuna, and right, and Krishna is giving the essence of Ved and the Upanishads. Beautiful. Thank you, Kalpana. मस्त. तेच ना, गाईचं दूध काढून आपल्याला देतात ते, असं आहे तो श्लोक. आपण आता बोललो ते. हो, बिलकुल असंच आहे ते. खूप छान. सच अ ब्युटिफुल रीड. हे शेवटचे 3 चॅप्टर्स तर असे रोज वाचन असं अफलातून आहे, बिकॉज शी मूव्स ऑन ना. आता 8वा अध्याय चालू आहे, मला वाटतं 9, 10, 11, 12वा अगदी शॉर्ट आहे, पण हे शॉर्ट मध्ये तिने घेतलंय. पण इतकं अप्रतिम एक्सप्लेनेशन्स आहे. Every day is a wonder, once you reach this point, it's like, all those basics about it, basics सगळं क्लिअर झालेलं आहे. बॉडी काय आहे, माइंड काय आहे, स्थूल काय आहे, सूक्ष्म काय आहे, पिंड काय आहे, ब्रह्मांड काय आहे, हे सगळं बेसिक एकदा संपल्यावर त्याचे सगळं जे ब्रिंगिंग इट ऑल टुगेदर, it's like a beautiful rangoli. I sometimes feel it's such a beautiful design. Everything is coming together. So these last few chapters are just wonderful. I look forward to the next class. All right, Thambuya, thank you so much, my dear friends. Thank you for being with me on this. Thank you.